Hello dear students, so in this video we are recalling a very important derivation which has come lot many times in exams, which is for refraction at a spherical surface. And this is a formula that you know, mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r, which is the formula we use for anything to calculate which is pertaining to is refraction at a spherical surface, right? So many times this has come, right? So it's fairly simple, right? So let's just quickly start. We will take a spherical surface. So this is convex towards the medium mu1, and this side, this is the medium mu2. Okay, so this is the medium mu1, this is the medium mu2, and this is the surface which is separating line between these two mediums, right? I hope you understand the scenario. So this will somewhere, this is going like this is going like this. So this is your medium, right? Which could be a glass or something. And to put things in perspective, this could be air or something, right? But we will derive this formula for a general case where on the one side we have a refractive index mu1, on the other side this is a refractive index mu2. Okay, so we will take an object O, right? Take an incident ray falling on this surface at point Q. At point Q, we will draw a normal. How do we draw a normal on a spherical surface? This is the center of curvature somewhere of this spherical surface. There is a center of curvature, right? We will join this point of incidence, and this will be the normal line, right? So I would rather like color this with something different so that we can see it separately. So this is the blue line. This is the normal line. You can say this is the normal. This is the normal line, you can see, right? So obviously if you extend this normal line on the other side, this will become like this, right? So what is this angle? I, this is obviously this is angle of incidence, angle between the normal and the incident ray, and this is the refracted ray. So angle between the refracted ray and the normal, this will be angle R. So this is I, this is R. Okay. Now we mark few angles like this. We have marked this angle as beta, this is gamma, this is alpha. Why? We will need these angles in the derivations, right? So okay, first let's understand few basic things. Angle beta will be equal to R plus gamma. I am writing angle beta is equal to R plus gamma, right? How? You know that this is an exterior angle for this triangle. So exterior angle will be equal to two opposite interiors. Obviously, देखो, in the context of derivations in ray optics, you are not supposed to explain two obvious things, right? अभी आप grade 12 में हो, so टीचर को भी मालूम है कि आप जो लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो. अगर आपको चाहिए ज्यादा, अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप बोल सकते हो इधर ब्रैकेट में एक्सटीरियर एंगल. ठीक, इफ यू वांट टू बी सेफ कि आपके कोई मार्क्स कट ना करे बेकार की रीजन की वजह से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आप क्यों लिख रहे हो ये चीज, ठीक है. लेकिन बहुत ज्यादा इसमें टाइम, हमको देखो डेरिवेशन में टाइम भी बचाना होता है. 2 मार्क्स का डेरिवेशन होता है, हमारा 70 मार्क्स का पेपर होता है, राइट. आपको इसमें 2 मार्क्स में ऐसा नहीं कि एकदम हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना है. वो ये 10th का डेरिवेशन नहीं है, दिस इज ग्रेड 12 का डेरिवेशन. यू आर एट अ सर्टेन लेवल, है ना. तो अभी आप डायरेक्टली लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, ब्रैकेट में चाहिए तो एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. तो यहाँ से एंगल आर के आ गया, बीटा माइनस गामा आ गया, ये अपने पास हमने लिख लिया. ऐसे ही अगर देखो आप एंगल आई को हम लिख सकते हैं सेम अल्फा प्लस बीटा से. देखो एंगल आई कौन सा, ये वाला एंगल है, वो ये बड़े वाले ट्रायंगल क्यू ओ सी के लिए एक्सटीरियर एंगल है. सो दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर्स. तो एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. देखो क्या किया हमने, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था उसको बीटा और गामा के टर्म्स में लिख लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने अल्फा और बीटा के टर्म में लिख लिया. देखो ये हमारे डेरिवेशन की क्रिटिकल स्टेप है. ये एग्जाम में आप भूल गए ना तो आप फंस जाओगे, ठीक है. अब हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू लिखनी है. अल्फा और टैन अल्फा इक्वल होंगे. अगेन आप जानते हो स्टैंडर्ड डेरिवेशन रे ऑप्टिक्स का, वी टेक अल्फा वेरी वेरी स्मॉल, तो टैन अल्फा इक्वल टू अल्फा. और ये क्या हो जाएगा, आप देखो टैन अल्फा अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू एम बाय ओ एम, क्यू एम बाय ओ एम. और ओ एम को हम लिख सकते हैं ओपी. अगेन पैराक्सियल रेज है तो इसका मतलब ये पॉइंट बहुत क्लोज होगा पोल के, तो इसको पीएम को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम क्यू एम बाई ओपी लिख सकते हैं, राइट. इसी तरीके से आप देखो
इसी तरीके से आप टैन बीटा लिख सकते हो, टैन गामा लिख सकते हो, आपके सामने लिखा हो, बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हो, सामने लिखा हुआ, वीडियो को पॉज करना और आप समझ लेना कि जो मैंने लिखा हुआ आप यूर मेकिंग सेंस ऑफ। जैसे मैंने अल्फा बीटा गामा लिख लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो क्या होगा, म्यू वन साइन आई, म्यू वन साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन मल्टीप्लाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इंसिडेंट मीडियम, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, राइट। दिस इज हाउ वी विल इम्प्लीमेंट स्नेल्स लॉ। आप हमेशा याद रखिए कि स्नेल्स लॉ को मैं कई बार बोल चुका आप लोगों को क्लासेस में कि स्नेल्स लॉ को आप वैसे मत याद रखो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, ये बच्चों वाली बात है, ग्रेड 10 में करते थे आप। यहाँ पे हमको मालूम है कि दोनों साइड अलग अलग मीडियम हो सकता है, तो दिस इज द बेटर वे टू मेमोराइज। म्यू वन मतलब जो इंसिडेंट साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टाइम्स साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड साइड का जो इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टू साइन आर, ये हमने लिखा। तो यहाँ से हम ये कहेंगे आई और आर बहुत स्मॉल एंगल है, ठीक है। अगेन ये हमारा सेफ एजम्पशन होता है, वी टेक इट राइट, एंड बिकॉज इसके बिना हम डेरिवेट कर नहीं पाएंगे, तो हमने आई और साइन आर को हमने क्या कर लिया, आई और आर कर लिया। तो म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। एक सजेशन मेरा आपका और रहेगा, यहाँ पे ना डेरिवेशन का यार एक स्कोप होता है आप लोगों का। अब फिजिक्स के डेरिवेशन में बहुत सारे एजम्पशन, हर जगह हर आपको देखेगा कि हर डेरिवेशन में कुछ ना कुछ एजम्पशंस हैं। तो समटाइम्स दिस थिंग्स बॉदर्स कि यार इतने सारे एजम्पशन करके हम जो डिराइव कर रहे हैं क्या वो सही है। देखो बिल्कुल चीज़ें सही है, क्यों, क्योंकि हमारा जो एस्पेक्ट है रे ऑप्टिक्स का ना, हमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी है। वी आर ट्राइंग टू डिवाइस अ मैकेनिज्म सो दैट वी कैन कैलकुलेट थिंग्स इन रे ऑप्टिक्स, राइट। तो वहाँ पे एजम्पशंस बहुत ही आराम से हम ले सकते हैं और इससे हमारे कैलकुलेशंस भी कोई ऐसा बहुत मतलब फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये डेरिवेशंस आप लोग ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, टाइम मत वेस्ट करना, बस आपको ये याद होना चाहिए कि साइन आई इक्वल टू साइन आर लिख के अपन आई और आर को स्मॉल एंगल की वजह से साइन आई को आई, साइन आर को आर लिख लेते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, बहुत आराम से, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, आई की जगह लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा और आर की जगह लिख दोगे बीटा माइनस गामा। देखो आई की जगह लिख दिया अल्फा प्लस बीटा और आर की जगह लिख दिया बीटा माइनस गामा। ये होने के बाद आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की लिखेगी। अभी बीटा को हम एक साइड ले लेंगे तो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन टाइम्स बीटा, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा म्यू टू गामा प्लस म्यू वन अल्फा का, कुछ नहीं किया, टर्म्स को रीअरेंज किया, बेसिक मैथ्स है, राइट। ओके, अभी बीटा को हम अब जो वैल्यूज हमने लिखी हुई थी उसका हम यूटिलाइज करेंगे। बीटा को लिखेंगे हम क्यू एम बाई सी पी। देखो बीटा को लिखा था हमने क्यू एम बाई सी पी, इस तरह से अल्फा को लिखा था क्यू एम बाई ओ पी और गामा को लिखा था क्यू एम बाई पी आई। सो गाइज यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। इन तीनों अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज, बीटा को क्यू एम बाई सी पी, अल्फा को क्यू एम बाई ओ पी और गामा को क्यू एम बाई पी आई हमने लिख लिया है, ठीक। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है यहाँ से क्यू एम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू एम का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो क्यू एम कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सी पी क्या है, देखो लेट्स गो बैक, सी पी क्या था, सी से पी ये क्या डिस्टेंस है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, तो उसको आर लिख लिया हमने। इसी तरीके से आप देखोगे पी आई क्या है, ये इमेज डिस्टेंस था, राइट। आप वीडियो को पीछे लाके देख सकते हो, पी आई इज वी। और ओपी क्या है, यहाँ पे माइनस यू है, क्यों, क्योंकि हम साइन के कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो ये दोनों तो इस साइड में मतलब पॉजिटिव है, कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से ये पॉजिटिव है आर और वी, बट यू इस साइड पे आ रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, माइनस यू कर दिया। तो अब देखो सामने जो आपको चाहिए था वो सामने लिखा हुआ है, वेरी इजी गाइस, 3-4 स्टेप्स है और आपका फॉर्मूला आ गया म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। रिमेंबर वन थिंग, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स मैंने उनको बताया हुआ है, लेकिन आपको फिर से बता दूं इसमें कि म्यू टू और म्यू वन का रोल हमें पता होना चाहिए वेरी क्लियरली। इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज म्यू वन एंड व्हाट इज म्यू टू। म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, तो प्लीज याद रखिए म्यू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ठीक है। और म्यू टू क्या होता है गाइज, म्यू टू इज अ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, जहां पे इमेज इज फॉर्म्ड, या फिर
रिफ्रैक्टेड मीडियम। बस, तो इससे फायदा क्या होगा, मान लो कभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, मतलब मान लो एक एक जो ग्लास बबल है, कोई ग्लास बबल के अंदर, सॉरी, कोई ग्लास का कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर कोई एयर बबल है। अब अगर हम एयर बबल को देखें तो वो रखा कहाँ हुआ है, ग्लास में, और हम उसको व्यू कहाँ से करेंगे, एयर से। तो हमारा इस केस में म्यू1 जो होगा वो इंसिडेंट मीडियम का, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मतलब वो 1.5 होगा, वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से हम देख रहे हैं, दैट इज एयर, वो होगा 1। तो म्यू2 की वैल्यू होगी 1 और म्यू1 की वैल्यू होगी 1.5। तो ये प्लीज याद रखना, वरना क्या अलग अलग बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सुनाने के लिए, और तब भी गलती होती है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, यही फॉर्मूला लगाना है आपको, कुछ चेंज नहीं करना। बस म्यू1 और म्यू2 का रोल आप समझ लो। म्यू1 वहां जहां ऑब्जेक्ट रखा है, म्यू2 वहां जहां ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्ट होकर जा रहा है, मतलब जहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो दिस इज आवर सिंपल डेरिवेशन गाइस, थैंक यू वेरी मच।